Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let me give you my brief introduction. My name is Javed Iqbal and I am working as an assistant professor in the Department of Management Sciences, ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad. A very brief introduction about my education. I did my Master of Science in Accounting from University of Gothenburg, Sweden. Before that, I have already done my Master of Business Administration from University of Sargodha, my Master of Commerce from Haile College, Punjab University, and Bachelor of Commerce from Haile College, Punjab University. I have already got few distinctions during my education. I was selected one of the top 5 international students by Rotary International from University of Gothenburg, Sweden. They have awarded me a certificate and a cash prize. I already got distinction on my master's thesis from University of Gothenburg, Sweden during my Master of Science in Accounting. Based on my thesis, my supervisor took me as a research fellow. I did a project of financial crisis of European financial institutions. So my supervisor gave me a cash prize and a certificate based on my performance. In my experience, as I already told you, that I am working as an assistant professor in the Department of Management Sciences, ComSat's Institute of Information Technology since 2009. Before that, I have already worked as a lecturer in the University of Education, Lahore, and a lecturer in High Ames College of Commerce, Johorabad. So totally I have almost 6 years of teaching experience. I have some research interest that is about financial disclosure, financial regulations, financial statements analysis, accounting practices, and management accounting. So these are basically the research interest on which I am working for my research papers, my courses which I am teaching to the students of MBA and BBA students. This is a brief introduction of my profile. Now come to the actual course which I am going to teach you during the semester. I am teaching Accounting 1. It is a MGT 130 course code. So before directly going to the accounting subject, I should give you a brief contents which I am going to teach you during the semester. We'll study about the business organizations. What are the different types of business organizations? These are proprietorship, partnership, and joint stock companies, or sometimes we used to call it corporations. So their details we will go in the actual course. We will also study about the types of businesses: manufacturing business, merchandising or trading business, and service business. These are basically the 3 types of businesses that exist all over the world. So we will study about these types. Accounting, information for decision making, financial accounting, management accounting, and then objective with regards to the information. Generally accepted accounting principles and accounting standards. These are different standards which are followed all over the world. International Accounting Standard, these are implemented in the Europe. IFRS, these are emerging standards. These are actually the basis for business entities for preparing financial statements for the external users of the organization. We will also study about these external users, who are the actual external users of the organizations. Economic transactions, double entry system, how the transactions are made, and principles of debit and credit. We will study about accounting equation, what are the rules of accounting equation, techniques of calculating assets, liabilities, owner's equity, transactions in accounting equation.
Financial statements, we will study in the financial accounting income statement, balance sheet, cash flow statement, and statement of changes in owner's equity. These are actually the basic 4 types of financial statements which are used in the annual reports. We'll study about accounting cycle, preparing the journal entries. If any transaction is made, then we have to make the journal entries, preparing ledgers, which are called the basic main book of original entries, preparing trial balances, adjusting entries, adjusted trial balance, then preparing financial reports, and finally closing the entries and completion of accounting cycle. Further, we will also talk about special journals, because these special journals would be the part of our accounting cycle, but these are only the supplement information. Then we will also talk about receivables, कि आपने डाटा अपने डेटर से जो अमाउंट कलेक्ट करनी होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. इन्वेंट्रीज, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, उसमें क्या क्या फर्दर टेक्निक्स होती हैं इन्वेंट्रीज के लिए. देन कंट्रोल ओवर कैश, this would be our last topic, and in this control over cash we will also talk about bank reconciliation statement. This is actually a basic course content which we are going to study throughout the semester. So let me start from here, that what is our recommended book for your practice questions. I have taken some of the questions from one book, other book. You can also for your own self find out information from different accounting books, and the name of accounting books would be Accounting, the Basis for Business Decisions, or Accounting, Simple Accounting. So if you see on the slide, first I have used a book that is Meeks, William, Haka, Bettner. These are the 4 authors, and they have written their book Accounting, the Basis for Business Decisions, and it's 11th edition. The maximum difficulties which I have solved in these lectures can cover all types of your questions. Now come to the actual course. This is, as I told you, Accounting 1, MGT 130 course, and chapter number 1. During the course we will study in this chapter nature of businesses, role of accounting in the business, which is more important, profession of accounting, then summarizing the development of accounting principles, and stating the accounting equation and defining each elements of the equation. How the business transactions can be stated in the terms of resulting changes in the basic elements of accounting equations, describing the financial statements of a proprietorship and explain how they interrelate. So these are the objectives that we will study in the chapter number 1. Now, what are the types of businesses? As I told you in the course content, there are basically 3 types of businesses. One is manufacturing business, the other is merchandising, or sometimes we used to call it trading business, and the third one is service business. These are the basic types of businesses which exist all over the world. In the types of businesses, first one is manufacturing business. Manufacturing business, we can get some examples like Toyota Motors. They are manufacturing vans, cars. Intel computer chips, they are producing computer chips. Nishad, if we take an example of Pakistan, then Nishad Group, within the Nishad Group they have a textile area, they are manufacturing the clothes. Nike, they are producing athletics shoes and some other apparels. Coca-Cola, they are producing beverages. And Sony stereo and telephone and some other products they are manufacturing. So basically the purpose of this manufacturing business is that they are producing and making something new. Before that it has something else, and after the process the company has made a something new thing. The second one is the merchandising business. In this type, the traders purchased one product from one place or one person and sell it to the other person.
They purchase at a low price and sell it at a higher price. The difference between low price and higher price would be the profit of the trader. We have some examples in Pakistan like Metro Cash and Carry. They do not produce anything, but they purchase products from one place, maybe from the manufacturer, direct manufacturer, and sell it to the other consumers. D. Watson, they purchase medicine from the pharmaceutical companies and sell it to the general people. United Mobiles, they purchase mobile phones from a manufacturing company, like they purchase mobiles from Nokia, Sony Ericsson, and some other companies, and then sell it to the other consumers. And last is Amazon.com. They sell the books and music, CDs, and many more things from the manufacturer and sell it to the general public. They sell it through their websites. Now, the third form of business is services. Before that, we studied manufacturing, they produce products. The second one, they purchase products, finished products from the manufacturer and sell it to the consumer. They do not have any option to change anything. Their characteristics are same. Their features are same. No modification. एक जगह से परचेज किया एज इट इज़ कंडीशन में और उसको सेल आउट कर देते हैं कंज्यूमर्स को. दरमियान में इंटरमीडिएरी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो नेचर है बेसिकली वो ये बताती है कि उन्होंने एज इट इज़ फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से परचेज करना है और सेल कर देना है नेक्स्ट पार्टी को. नाउ इन द थर्ड फॉर्म, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट, दे हैव ओनली द सर्विसेज. Like for example, PIA, they provide services of transportation. People buy the tickets and then they travel from maybe from Karachi to Lahore, maybe from Pakistan to USA, maybe from Pakistan to Europe, and vice versa. So no products are involved in this type of business. Then for example, Marriott Hotel, they have a hospitality and lodging. No products are involved. They are just giving the services to the people. HBL, Habib Bank Limited, they are providing only the financial services. No products are involved. Physical products are not involved in this type of business. People are depositing, people are borrowing from the banks. Then PTCL, they have a telecommunication business. They are not producing anything. They are not trading any type of product, but they are providing the services of telecommunication. People are calling from one place and the other person is listening from the other place. Only a communication is involved. It means that they are not using any product, just they are giving the services to the people. So we have gone through three types of businesses. Number one is manufacturing business. Number two, merchandising. And number three is services business. Now, after types of business, we have three types of business organizations. So we should understand the difference between the types of businesses and the types of business organizations. We have three types of basic business organization, that is sole proprietorship, partnership, and corporations. These types of business organizations can do any type of business. Sole proprietorship can manufacture the product, they can trade the product, even they can provide the services. Partnership business, they can produce the products, they can trade the products, and they can provide the services. Same is the case with the corporations. They can produce the products, they can trade the products, and they can provide the services. So these are all types of three business organizations doing all three types of businesses all over the world. Not in Pakistan, they are doing businesses all over the world. A very few advantages and disadvantages of these types of organization. As I told you, a proprietorship is owned by one individual. Only one person is doing that kind of business. They have a
two advantages basically. There are a lot of advantages, but basically we have chosen a few out of them. Number one is ease in organization. It is very easy. You can look around your bazaars, markets. You can see that एक आदमी शॉप ओपन की, वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया. No formalities, no legal rules and regulations are required. सिंपल ज़ाती शॉप है तो वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर लेगा. अगर ज़ाती नहीं है तो वो किराए पे लेगा और उसे बिजनेस शुरू कर लेगा अपना. देन लो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप सिंपल एक जो आपके पास लिमिटेड कैपिटल होता है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं. इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनमें लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ये एडवांटेज तो है कि आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती, लेकिन आप इसको बड़े स्केल पर शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है. आपके पास जो अपना पैसा है आप वो इन्वेस्ट करेंगे या आप बारो करेंगे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से. बैंक्स नॉर्मली इस काम के लिए लोन कम देते हैं. द रीज़न इज़ दैट कि दे डू नॉट हैव एनी पास्ट बैकग्राउंड ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट मीन्स दैट अगर सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस में नुकसान होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी उसके नुकसान या उसके डेट्स को पूरा करने के लिए यूज किया जा सकता है. दिस इज अ वेरी अनसिक्योर टाइप ऑफ बिजनेस. इफ आई हैव अ borrowed money from the bank, if I have borrowed money from the friends, if I have borrowed money from the relatives, my personal assets can be used to settle the debts. So these are basically the advantages and disadvantages of sole proprietorship. Then we have a partnership. A partnership is owned by two or more individuals. In this case, when there is one person, it means you have a limited resources. When there are more than one person, it means that everybody is contributing. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत पार्टनरशिप में आप फंड्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके एक बड़े स्केल पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं. देन जब आपके पास एक आदमी है तो उसकी लिमिटेड स्किल्स होती हैं. जब आपके पास एक से ज़्यादा पार्टनर्स बन जाते हैं तो आपके पास स्किल्स भी उसकी ज़्यादा होती हैं. एक पार्टनर एक टाइप की स्किल्स को यूज़ करते हुए एक काम कर सकता है, जो दूसरा पार्टनर है वो अपनी दूसरी स्किल्स को यूटिलाइज करके दूसरा काम मैनेज कर सकता है. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप एक इंडिविजुअल और पूरे बिजनेस को आपको मैनेज करना पड़ता है. लेकिन पार्टनरशिप में व्हेन यू हैव अ मोर देन वन पर्सन, इट मींस दैट यू हैव मोर स्किल्स एंड यू कैन मैनेज योर बिजनेस इन अ मोर इफेक्टिव वे. इन द डिसएडवांटेजेस, it has same unlimited liability. It means that if the partnership is sustaining a loss, then the personal assets of the partners can be utilized for the settlement of debts. अब जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो तो लॉस हो गया, वो तो यूज होगा, लेकिन उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, मे बी उसका घर है, कहीं और उसकी ज़मीन है, कहीं और उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है पार्टनरशिप के डेट्स को सेटल करने के लिए. तीसरी फॉर्म हमारे पास कॉरपोरेशंस की है. आवर कॉरपोरेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्टेट और फेडरल स्टैट्यूट एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. इसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं बिकॉज दिस कॉरपोरेशन वर्क्स एज ए आर्टिफिशियल पर्सन. पार्टनरशिप में बताया जाएगा कि कौन काम कर रहा है, पार्टनर्स को उसमें शामिल किया जाता है, पार्टनर्स की अपने नाम की स्टैंप होगी. सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास ऑनर के या सोल प्रोप्राइटर के नाम की स्टैंप यूज़ की जाएगी. लेकिन जब आप कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो फिर कॉरपोरेशन एक एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी काम करता है. तो वहाँ पर मेंबर्स को नहीं, पार्टनर्स को नहीं, उस कॉरपोरेशन के नाम से उस बिजनेस को रिकग्नाइज किया जाएगा. फिर आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं.
आपके पास इसके एडवांटेजेस में एबिलिटी टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाय इशूइंग स्टॉक्स। अब यहां पर आपके पास बेसिकली बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, बहुत ज्यादा ओनर्स हैं। अब हर आदमी उसकी ओनरशिप में आना चाहता है, तो वो अपने फंड लेकर आएगा, कम लेकर आए ज्यादा लेकर आए, जिस हद तक वो लेकर आए उस हद तक उस कॉर्पोरेशन का वो ओनर होगा। कम लेकर आता है तो उस हद तक वो ओनर है, ज्यादा लेकर आता है तो वो उसका शेयर ओनरशिप का बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर आपके पास तादाद नहीं है, देन इट्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के इफ this corporation sustain a loss, then their personal assets of partners or shareholders cannot be used for the settlement of the debts of the corporation. बेशक उसका घर है तो वो घर उसका यूज नहीं किया जाएगा डेट्स की सेटलमेंट के लिए, उसकी कोई लैंड है उसको यूज नहीं किया जाएगा, कहीं और उसकी इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी यूज नहीं किया जाएगा। जितना उसने इन्वेस्ट किया है उस हद तक ही उसने लायबल होना है। इसके डिसएडवांटेजेस में आपके पास डबल टैक्सेशन है कि कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम कर रही है, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया देन फर्स्ट दे हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ओनर्स में, देन द ओनर्स हैव टू पे द टैक्स। अब यहाँ पर डबल टैक्सेशन आ रही है। लेकिन इससे पहले जो दो बिजनेसेस हमने पढ़े, टाइप्स पढ़ी हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उनमें आपके पास इस तरह नहीं है। उसमें जो भी अर्न होगा उस पर सिंगल टैक्सेशन होगी। देन डिफिकल्ट प्रोसेस टू एस्टैब्लिश, आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको फुलफिल करते हुए एक बहुत एक्सटेंसिव टाइम चाहिए होता है आपके पास। नंबर 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल वर्क्स, पार्टनरशिप मोर देन 1 person वर्क्स, एंड कॉर्पोरेशंस more than 1 person, but they are registered according to the Companies Ordinance 1984। इसलिए इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट में जितनी भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो सारी की सारी कॉर्पोरेशन से रेलेवेंट होगी। अकाउंटिंग की बेसिकली जरूरत ही इसलिए आपको पड़ती है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर है वो तो सिंपल अपने पास एक सिंपल बुक रखेगा, उसमें कैलकुलेशंस करता रहता है। पार्टनरशिप में भी आपके पास एक सिंगल बुक होती है, उसमें आप कैलकुलेशंस करते रहते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन में आपको क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर एक अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की रिक्वायरमेंट है। बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू द अकाउंटिंग, वी शुड नो about the business strategies. What is actually a business strategy? Because we have gone through businesses, types of businesses, business organizations. Now we have established business. What would be our business strategy? Business strategy is actually an integrated set of plans and actions designed to enable the business to gain an advantage over its competitors and is doing so to maximize its profit. Basically आपने अपनी strategy को इस तरह बनाना होता है, क्योंकि business मार्केट में ऑलरेडी बाकी लोग भी कर रहे होते हैं, आपने एक कंपेटिटिव एडवांटेज लेना है, तो आपने अपने प्लान्स और एक्शंस इस तरह के बनाने हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकें। जब आप ये सारे का सारा काम कर रहे हो तो इट मींस यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस स्ट्रेटजी। देन अंडर अ लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, अ बिजनेस डिजाइन्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स or services of acceptable quality at a low cost lower than that of its competitors। अब मार्केट में कंपेटिटर्स अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लेके आते हैं। अब अगर उसकी कॉस्ट कम होगी और क्वालिटी आपके कंपेटिटर्स के बराबर है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आपसे प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। तो ये आपकी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी होती है। Differential strategy, a business designs and produces products or services that possesses unique attributes or characteristics which customers are willing to pay a premium price। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास एप्पल कंपनी की है। आपके पास आईफोन, आपके पास आईपैड, आपके पास मैकिंटॉश। कस्टमर्स ज्यादा प्राइस पे करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि
इस कंपनी की प्रोडक्ट बाकी कंपनी से टोटली डिफरेंट है, इसमें आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग इसको हाई प्राइस पे करते हैं। अब रिसेंटली आपके पास आईपैड टैबलेट है जो एप्पल कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई है। अब बाकी कंपनी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन एप्पल का आईपैड उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है मार्केट में, और पीपल आर विलिंग टू बाय। नाउ व्हाट आर द बिजनेस स्टेक होल्डर्स? A business stakeholder is a person or entity having an interest in the economic performance of the business. Stakeholder basically वो person है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई बिजनेस के साथ ताल्लुक है। बिजनेस ग्रो करता है तो उस पर उसका इफेक्ट होगा, बिजनेस ग्रो नहीं करता, डाउनवर्ड की तरफ है, उसका भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा उसके ऊपर। के पास स्टेक होल्डर्स में ओनर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, बैंक्स जो क्रेडिट देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन बिजनेसेस को, कस्टमर्स जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो देखती हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अब आपके पास जो ओनर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस तरह है कि उन्हें पता चले कि उनका बिजनेस किस तरह ग्रो कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। अभी उसका स्टेक होल्डर है। फिर बैंक्स वो देखते हैं कि हमने लोन देना है, कितना लोन दें, कितने अरसे के लिए लोन दें। अब उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि क्या दैट वी शुड एक्सटेंड अ लोन एंड टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ लॉन्ग वी शुड एक्सटेंड द लोन, बिकॉज दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोन देंगे, लंबे से के लिए भी देंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो लोन भी नहीं देंगे। टाइम पीरियड तो बहुत दूर की बात है। कस्टमर्स देखते हैं कि उनकी प्रोडक्ट क्या वाकई ही यूजर फ्रेंडली है, नई प्रोडक्ट क्या आ रही है, उनके लाइफस्टाइल को किस तरह वो बेहतर कर सकती है, किस तरह आपके लाइफस्टाइल को वो इंप्रूव करेगी। पहले देखें, इससे पहले आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, नहीं पता था, उसके बाद फिर लैपटॉप आ गए, फिर आपके पास टैबलेट आ चुकी है, अब हर एक मोबाइल में एक कंप्यूटर है। ये लोगों की जिंदगी आसान होती जा रही है। तो कस्टमर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी दैट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस दे आर डूइंग और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रही हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज डेफिनेटली दे हैव टू लुक दैट वेदर द रूल्स और रेगुलेशंस आर फॉलोड, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही बिजनेस में, कोई सोसाइटी के खिलाफ काम तो नहीं हो रहा। तो ये बेसिक आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑन। देयर आर बेसिकली टू कॉमन थिंग्स इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, whether they are profit making, whether they are not profit making organizations. They have some specific goals. कोई ना कोई उनका गोल होगा। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो दे हैव अ गोल ऑफ टू अर्न अ हायर प्रॉफिट, और अगर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है देन दे हैव अ गोल टू सर्व द कम्युनिटी, सर्विस टू द पीपल, एंड दे नीड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन उसको क्यों चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है। किसी भी इंफॉर्मेशन के बगैर नेक्स्ट आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। बेशक आपकी वो प्रॉफिट मेकिंग है, बेशक वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेशक वो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, बेशक वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, दे नीड इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। आपके पास एज आई टोल्ड यू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में प्रॉफिट मेकिंग है और आपके पास वेलफेयर वर्क है। आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग है तो दे हैव अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्न प्रॉफिट, और अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग है देन दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग वेलफेयर वर्क फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए लेकिन आपने उसको कम्युनिकेट कैसे करना, उसका बेसिक फ्लो क्या होगा। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है।
आपने चेक करना है कि वेदर दीज आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आपके पास, देन असेस स्टेक होल्डर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, कि उस स्टेक होल्डर को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपके पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके पास ओनर्स हैं, आपकी मैनेजमेंट है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपके पास कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपके पास। अब दोनों की इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। इंटरनल को इंफॉर्मेशन नीड सेपरेट है और एक्सटर्नल की इंफॉर्मेशन नीड सेपरेट है। थर्ड वन, when you have assessed the need of stakeholders about the information, then you have to develop an accounting system. Otherwise आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, until unless you have a proper accounting system. You must design an accounting system to meet the stakeholders' need. Then when you have developed this accounting system, you would go directly recording of economic data about business activities and events. Lastly, when you have identified the stakeholders, you assess the needs, developed the accounting system, and then record the economic or business data. Finally, you prepare accounting reports for these stakeholders, both internal and external. आपने देखा ये इंटरनल है, इनके मुताबिक आपने रिपोर्ट्स बना के दी, एक्सटर्नल है, आपने उसके मुताबिक रिपोर्ट बना के दी। तो बेसिकली आपका अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट ही इंफॉर्मेशन से होता है और ख़त्म भी इंफॉर्मेशन पे होता है। स्टार्ट आपका ये है कि व्हेन यू हैव कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई किया आपने, कहीं पे भी थी आपने इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की है, उसके बाद आपने उसको उस सारे के सारे अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजारा और फाइनली आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया है अपने स्टेक होल्डर्स के पास, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो दिस इज एक्चुअली एन अकाउंटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट आर बेसिक पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाई डू वी नीड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने ये तो असेस किया कि किस किस को इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन किस तरह की चाहिए आपको। आपके पास इन्वेस्टर्स को चाहिए इंफॉर्मेशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी जा रही है, आपके क्रेडिटर्स को चाहिए, आपके फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए होती इंफॉर्मेशन कि लोन कितने अरसे के लिए दे और कितना लोन दिया जाए, दिया भी जाए कि ना दिया जाए। उसके बाद मैनेजर्स को चाहिए, उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में देखना कि क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। फिर आपके पास ओनर्स हैं, उन्हें देखना होता है कि एम्प्लॉयज़ क्या वाकई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर आपके पास गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। These are basically the purposes of information. Now, what is the purpose of accounting? Before that we have seen the purpose of information. Now, what is actually a purpose of an accounting? The basic purpose of accounting is to provide information to decision makers that is useful in economic decision process. आपके पास सेम बात इंफॉर्मेशन से स्टार्ट हुई और फिर उसको यूटिलाइज किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए। जाहिर है जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक इंफॉर्मेशन ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेस पर आप कंपनी के बारे में या कॉरपोरेशंस के बारे में डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनाई जाए, आपके एम्प्लॉयज़ काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके और फिर आगे कम्युनिकेट करता है। नाउ फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन वेयर एवर इट इज एग्जिस्ट। कहीं पे भी पड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एन अकाउंटेंट टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, देन इट मस्ट रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन, समराइज इंफॉर्मेशन,
and then finally report economic information for decision making to the decision makers. आपने ये सारे स्टेप्स किए और फाइनली कम्युनिकेट कर दिए. अब आपकी इस अकाउंटिंग की बेस पे या तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं या आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पे बहुत वर्स्ट किस्म के डिसीजन लेंगे. आपका आउटकम या तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी अगर इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकते हैं, उनके आउटकम्स फिर बहुत ज़्यादा वर्स्ट होंगे. सो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. Now accounting system consists of two basic types, financial accounting and managerial accounting. Accounting system accumulate cost information and then financial accounting take information from that accounting system which is relevant to it, and management accounting take information from the accounting system which it relates. Now financial accounting it focus on the specific needs of the decision makers external to the organization, such as stockholders, suppliers, banks and government agencies. These are actually the people who do not have any interference within the organization. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स और सेमी एनुअल रिपोर्ट्स. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बेसिकली 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दे आर बेसिक 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and 4 are basics. You have a balance sheet, you have a cash flow statement, income statement and statement of changes in owner's equity. Notes are statements considered which is a supplement information from the basic 4 financial statements. Financial statements in which balance sheet shows the financial position of the organization for a specific point in time. Now I am focusing on 2 points, financial position and then specific point in time. Financial position shows कि इस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल वर्थ है. स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम का मतलब कि जिस डेट से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई उस वक्त से लेके जब तक आप इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं. आपकी फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर हो सकती है, 30 जून हो सकती है. तो जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी उस वक्त से लेके टिल नाउ या टिल दैट डेट कि इस वक्त कंपनी की पोजीशन क्या है. नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट. इट शोज नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब आपके जो नेट रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस खराब भी हो सकती है. व्हेन यू हैव अ higher profit, it means that your position is very good, operations worked very well. When you have a negative performance, you have sustained a loss. The other point is specific period of time. It means that you have to develop this income statement for a specific period, that is maybe from 1 year you are taking a quantity, maybe 6 months, maybe 1 quarter, 3 months, maybe 1 month, maybe 1 week, or even maybe 1 day. You want to check that what was the result of business operations for today. आप एक दिन का चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी है, लेकिन बैलेंस शीट में आपने जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई उस वक्त से लेके और आज तक. The third one is cash flow statement. It shows cash receipts and cash payments for a specific period of time. Again, आपकी एक साल में कैश फ्लोज क्या रहे, इनफ्लोज कितने हुए, आउटफ्लोज कितने हुए आपके 6 मंथ्स के अंदर, आपके एक क्वार्टर या 3 मंथ्स के अंदर, या इवन एक दिन के आप कितने कैश फ्लोज हुए, आपने इनफ्लोज कितने किए और आपने आउटफ्लोज कितने किए.
The final one is statement of changes in owner's equity. It shows changes incurred in the total equity for a specific period of time. कि उस specific period में जो हम आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक साल में आपकी ऑनर्स इक्विटी में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज आया, ऑनर्स ने कितने कैश विड्रॉ की, कितने एसेट्स विड्रॉ किए, कितना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है विड्रॉ की, या कितनी उसने फर्दर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की एक साल के अंदर, 6 मंथ के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपको बताती है। नाउ वी स्टडीड 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो हमने नोट्स के बारे में कहा था, नोट्स बेसिकली वो एक सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन होती है इन 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। बेसिकली बैलेंस शीट हैव 3 कंपोनेंट्स: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। Assets are basically the economic resources of the firm that are expected to increase or cause future cash flows. Liabilities are the obligations of the firm to outsiders or claim against its assets by the outsiders. Debt to the firm. आपके पास आउटसाइडर्स से कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये बेसिकली ऑब्लिगेशंस होती हैं, इनके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट पे करते हैं, आप प्रॉफिट पे नहीं करते। तीसरे नंबर पे ओनर्स इक्विटी, दैट इज एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। इसके अगेंस्ट ओनर प्रॉफिट लेता है लेकिन क्रेडिटर्स इंटरेस्ट लेते हैं। द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन आर रिमेनिंग क्लेम अगेंस्ट द फर्म्स एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज, राइट्स ऑफ द ओनर्स। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूं बैलेंस शीट के बारे में। आप एक अकाउंट को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में। एक साइड आपकी एसेट्स की और दूसरी आपकी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी मिलकर फाइनेंस करती हैं आपके एसेट्स को। अब डिपेंड ये करता है कि ओनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया और आउटसाइडर से लोन लेकर एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया गया। लायबिलिटीज के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देना होगा और ओनर्स इक्विटी उसका प्रॉफिट लेता है। अब हो सकता है इसमें आपके पास 50 और 50 की रेशो, 50 इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एंड 50 remaining amount was taken, 50% remaining amount taken from the banks as a loan. Income statement. A simple income statement consists of sales, expenses, operating expenses and then a net profit. कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम को? जितनी आपकी सेल्स हुई है उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करें। अब आप पर डिपेंड ये करता है कि किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जब आपके पास डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो फिर उनकी उसके मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनती है। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसके पास डिफरेंट आपके एक्सपेंसेस होंगे, ट्रेडिंग है तो उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे, और अगर सर्विसेज है तो उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे। सेम विद द केस ऑफ रेवेन्यूज। यहां पर हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है कि सेल्स रेवेन्यू, उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करें जो आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, तो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड अ सिंपल इनकम स्टेटमेंट। डिटेल में हम बाद में जाके पढ़ेंगे अपने प्रोसीडिंग लेक्चर्स में कि आप अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो उसमें आपकी क्या होगी, पार्टनरशिप है तो उसमें क्या होगा। अपने प्रोसीडिंग लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसी बनती है, आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस है या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है तो उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, और आपका सर्विस बिजनेस है तो फिर उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, जिसको हम फर्दर अपने लेक्चर्स में देखेंगे। नाउ द सेकंड component of accounting system, that is managerial accounting. It is a science of identifying information, measuring information, analyzing information,
interpreting information and finally communicating information for the decision making. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या मैनेजरियल अकाउंटिंग का बेसिक डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, बट एज फार एज मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, focus of managerial accounting is on the needs of the managers within the organization. आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए आप मैनेजरियल अकाउंटिंग यूज करते हैं. सो थर्ड कंपोनेंट दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. बेसिकली it is accumulation of cost data for use in both managerial and financial accounting. For example, product cost data that is used in the managerial accounting because that is used within the organization, and value inventory for the balance sheet, and balance sheet is a part of your financial accounting. तो आपने assets में आपने inventory को लिखना है तो that is a component of financial accounting. This is a very simple table which I have made. Accounting system, financial accounting, published financial statements. As I told you, published financial statements means income statement, balance sheet, cash flow statement, and statement of changes in owner's equity. Managerial accounting, information for decision making, for planning, directing operational activities and controlling the activities, and assessing its competitive position. क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है, तो वो देखते हैं कि हम अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर यूज किया जाता है इसको. These are basically the four basic differences between managerial accounting and financial accounting. Users of information, as we have already discussed. In managerial accounting, users are within the organization. Now within the organization may be your managers, your employees. Financial accounting, these are the interested parties outside the organization. अब outsiders में आपके पास owners आते हैं, outsiders में आपके पास government agencies आती हैं, outsiders में आपके पास customers आते हैं, banks आते हैं, creditors आते हैं. Regulations, no rules and regulations are required within the organization. Whatever the type of information, at what format the managers need, now the accountant has the responsibility to provide them within the same way. Whereas financial accounting is concerned, they have to conform with the generally accepted accounting principles, international accounting standards, or Securities and Exchange Commission. प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड. उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से आपने बनाना है, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सोर्स ऑफ डेटा इन मैनेजरियल अकाउंटिंग, organizational basic accounting system plus other sources, because they need information about their product, about their customers for their future decision makings. So they can get information maybe from the accounting system or they can get information outside the organization. वो देखते हैं कि product की demand है कि नहीं है, that is not used in the accounting, but they need information. So it means that they need information from the basic accounting system plus other sources. Whereas in financial accounting, it is purely based from the accounting system. All the information is taken from a accounting system. No other sources are used. Nature of reports and procedures focus on subunits within the organization, maybe from the departments, divisions, whole organization, historical as well as projection of future events. क्योंकि आपने देखना होता है कि फ्यूचर में क्या हम करने जा रहे हैं, आपने उस इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करना होता है. Whereas in financial accounting, all the historical data is used. No projection of future events, because you have to provide information to the stakeholders outside the organization, what business has done in the previous years, what business has done in the previous 6 months, what business has done in the previous quarter. So they have to provide information about the historical data. These are the basically 4 distinctions from
managerial accounting and financial accounting. Now, profession of accounting. Accountant employed by a business firm or a not-for-profit making organizations are said to be engaged in private accounting because these are the salaried people. इनको सैलरी दी जाती है, ये आपके इंटरनल अकाउंटेंट्स होते हैं. Whereas accountants and their staff who provide services on a fee basis are said to be employed in public accounting. जैसे आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, वहाँ पर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आपके, ये फी के अगेंस्ट करते हैं. दीज आर ऑल द सैलरीड पर्सन. दीज आर वर्किंग विद द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर कि आपने कंपनी के लिए इतने अरसे का काम करना है, उसके अगेंस्ट आप इतनी फ़ी पे करेंगे. लेकिन प्राइवेट अकाउंटिंग में आप उनको अपने पास एम्प्लॉय रखते हैं, उनको मंथली बेसिस पे सैलरीज दी जाती हैं. जनरली accepted accounting principles. There are different generally accepted accounting principles. Normally it is called GAAP, which is American based or US based. One is business entity concept. It explains that the business entity concepts limits the economic data in the accounting system to data related directly to the activities of the business. जो बिजनेस से रेलेवेंट डाटा होगा सिर्फ आपने वो यूज़ करना है. जो ट्रांजैक्शंस, जो एक्टिविटीज़ आपने बिजनेस से हट के की हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं होंगी. जो बिजनेस का पार्ट है आपने वो इंक्लूड करना है, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है आपने उसको इंक्लूड नहीं करना. वो हो सकता है किसी और बिजनेस का, तो वो उस बिजनेस से रेलेवेंट होगा. द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज द बेसिस फॉर एंटरिंग द एक्सचेंज प्राइस और द कॉस्ट ऑफ एन एक्विजिशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. आपने बताना है आपने कि कोई भी चीज़ अक्वायर की है तो वो उसकी वैल्यू क्या है, आपने उसको मेंशन करना होगा, उसकी वैल्यू को, उसकी कॉस्ट क्या है. थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. It requires that the accounting records and reports be based upon objective evidences. आप ऐसे ही ना लिख दें, प्रॉपर उनके एविडेंसेस होने चाहिए कि वाकई ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये इवेंट हुआ है, आपके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड हो, उसका एविडेंस मौजूद हो. फोर्थ वन, द यूनिट ऑफ मेजर्स. इट एक्सप्लेन्स दैट इकोनॉमिक डाटा बी रिकॉर्डेड इन डॉलर्स. पाकिस्तान में है तो पाक रुपीज़ के मुताबिक होगा. ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिंपल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखें वन बिल्डिंग, वन फर्नीचर, वन मशीन. यू हैव टू राइट इट इन सम मॉनेटरी यूनिट्स. दीज कुड बी रुपीज़, पाक रुपीज़, US डॉलर्स, जापानीज येन. दीज आर द मेजरमेंट यूनिट्स. आपको बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है. So these are basic the four generally accepted accounting principles. Now come to the accounting equation. What is an accounting equation? We have seen that assets are equal to liabilities plus owner's equity. Assets, the resources owned by the business. अब वो बिजनेस के हैं. अब उसको फाइनेंस किसने किया है? या तो लाइबिलिटीज या फिर ओनर्स ने. लाइबिलिटीज आपने आउटसाइडर से ली हैं और ऑनर्स मीन्स ऑनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है. दैट मस्ट बी इक्वल. इट मीन्स एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. लाइबिलिटीज में आपके पास द राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स विच रिप्रेजेंट्स डेट्स ऑफ द बिजनेस. इसका मतलब ये हुआ कि जितने क्रेडिटर्स ने बिजनेस में डेट्स दिए आपने वो रिकॉर्ड करना है, प्लस ऑनर्स इक्विटी के ऑनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया. तो आपकी लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी ये दोनों फाइनेंस कर रही हैं आपके एसेट्स को, और एसेट्स ओन करते हैं बिजनेस ने. नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? कोई भी एक्टिविटी इंफॉर्मेशन की जिसकी फाइनेंशियल कोई वर्थ होगी वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाएगी. अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट आर कंडीशंस दैट इज डायरेक्टली चेंजेस एन एंटिटीज फाइनेंशियल कंडीशन.
और डायरेक्टली अफेक्ट इट्स रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हुआ जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, जिसका इफेक्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट पे, जिसका इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पे होगा, जिसका इफेक्ट आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे होगा, या फिर आपका जिसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑनर्स इक्विटी पे होगा। नाउ वी शुड गो विद द एग्जाम्पल। ऑन November 1st, 2010, Javed Iqbal begins a business that will be known as Opportunities Incorporation। अब फ्यूचर में जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उनको हमने बिजनेस इनकॉर्पोरेशंस के नाम से करना है, क्योंकि हमने इससे पहले कहा था कि हम तीसरी टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेके चलेंगे, उसके मुताबिक हम अपना डाटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी कॉर्पोरेशन का नाम रखा है अपॉर्चुनिटीज़ इनकॉर्पोरेशन। अब 1 नवंबर को जावेद इकबाल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, पहली जो ट्रांजैक्शन होगी, जावेद इकबाल डिपॉजिट्स ₹20,000 इन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 25,000 बैंक अकाउंट में जावेद इकबाल ने इन्वेस्ट किए। आपके पास सेम अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है, एसेट्स में कैश आपके पास 24,000 की आई है एंड दैट इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी। इसको हम लिखेंगे जावेद कैपिटल 25,000 इन्वेस्टेड बाय जावेद इकबाल। अब यहाँ पर क्योंकि सारी की सारी अमाउंट इन्वेस्ट की है जावेद इकबाल ने, तो आपके पास यहाँ पर कोई भी लोन नहीं है, तो टोटल आपका एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर ओनर्स इक्विटी। देन सेकंड ट्रांजैक्शन में अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंज ₹20,000 फॉर लैंड। इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन परचेज्ड अ लैंड फॉर कैश। तो आपकी 20,000 की कैश में कमी आई और दूसरी साइड पर आपका जो लैंड है उसमें इंक्रीज आया। आपके पास कैश 25,000 ऑलरेडी थी, उसमें से आपने 20,000 पे किए, आपके पास कैश बच गई 5,000 की और लैंड आपके पास 20,000 का इंक्रीज आ गया। अब इक्वेशन आपकी ये बन रही है कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर ओनर्स इक्विटी। अब एसेट्स आपके पास 5,000 कैश अवेलेबल है और लैंड की वैल्यू आपकी 20,000 की है, तो टोटल आपके पास एसेट्स 25,000 के आ गए और ऑनर्स इक्विटी आपकी अगेन उसी तरह 25,000 की है। तीसरी ट्रांजैक्शन में ड्यूरिंग द मंथ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन परचेज सप्लाईज फॉर ₹1,350 एंड एग्रीड टू पे द सप्लायर्स इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है एग्रीड टू पे द सप्लायर इन नियर फ्यूचर। इट मीन्स दैट Opportunities Incorporation is not paying cash. They are just agreeing that payment would be made in the next future. Now, one asset is increased, cash you have already exists, land you have still exist, one more component supplies, these are increased, a new component added, balance 5,000 you have already previous, supplies are increased 1,350 and still you have a land of 20,000. Now you have a total cash 5,000, supplies 1,350 and land 20,000. On the other side, your liabilities are increased by 1,350 because you did not pay any cash. And owner's equity, there is no change during that transaction. So you have now 25,000 of owner's equity and liabilities 1,350. Just a brief overview कि आपके पास फाइनेंस किए जा रहे एसेट्स को लाइबिलिटीज के थ्रू और ऑनर्स इक्विटी के थ्रू। टोटल आपके पास इस वक्त जो एसेट्स होंगे वो 26,350 के होंगे, उसमें से 1,350 आपकी लाइबिलिटीज हैं जिसको आपने नियर फ्यूचर में पे करना है और ऑनर्स के पास 25,000 की कैपिटल है। फोर्थ ट्रांजैक्शन में अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, अर्निंग फीस एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश। नाउ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन
प्रोवाइडेड द सर्विसेज अगेंस्ट कैश। यहाँ पर आपके पास कैश की इन्वॉल्वमेंट है और आपने सर्विसेज के अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। तो कैश में आपका 7,500 का इंक्रीज आएगा और उधर से आपकी ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज आएगी। आपके पास कैश ऑलरेडी 5,000 का था, 7,500 आपने इसमें कैश रिसीव किया अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, तो टोटल आपके पास कैश होगी 12,500। सप्लाईज नो चेंज 1,350 एंड लैंड 20,000 नो चेंज। Whereas in liabilities no change 1,350 and owner's equity now there is an increase of 7,500. You had already 25,000, now 7,500 are added. Total capital of Javed Iqbal is 32,500. Opportunities Incorporation paid the following expenses. आपने इसके अगेंस्ट कैश पे किए, तो टोटल कैश आपने 3,650 की पे की है। इन सब को आप ऐड करें तो आपके पास 3,650 की कैश आती है जो आपने पे की है, और इसके अगेंस्ट आप अपने कैपिटल में से ये अमाउंट डिडक्ट करेंगे। कैश में से आपने डिडक्ट किया तो ये आपके पास नेट कैश इस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद पेमेंट के बाद 8,850 बचती है। सप्लाईज में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन द लैंड। अकाउंट्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया आपके पास, लेकिन आपके ऑनर्स इक्विटी में 3,650 का चेंज आया था, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल में 3,650 की रिडक्शन हुई। नेट आपके पास अब 28,850 के अमाउंट कैपिटल में बचती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन पेड ₹950 टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द मंथ। अब जो आपने नियर फ्यूचर की बात की थी, जो आपने सप्लाईज परचेज की थी, उसके अगेंस्ट अब आप 950 रुपीज पे कर रहे हैं। तो यू हैव टू पे 950 फ्रॉम द कैश, दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 8,850। वो माइनस किया आपने, तो नाउ यू हैव अ बैलेंस ऑफ 7,900। नो चेंज इन द सप्लाईज, नो चेंज इन द लैंड, but liabilities are reduced with the 950. Now you have a net balance of payment is 400 and owner's equity no change 28,850. If you make a comparison of both assets and liabilities and owner's equity, that must be equal. Equal नहीं होंगे तो इसमें कोई ना कोई फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड इज 550, सो 800 ऑफ सप्लाईज वर यूज्ड। टोटल आपके पास सप्लाईज थी 1,350 की, उसमें से आपके पास 550 की बच गई हैं, तो इट मीन्स यू हैव यूज्ड फॉर 800 सप्लाईज। आपने कंज्यूम कर दिया उसको, तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? कैश कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज, बिकॉज देयर वॉज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश in this transaction. Supplies 1,350 minus 800 because you have used 800 supplies. So net supplies are 550 as mentioned in the transaction. No change in the land, no change in the accounts payable, whereas your supplies are deducted 800 from the capital account. Now your capital is 28,050 after deducting your 800 supplies expenses. Next transaction says that at the end of the month, Javed withdraw ₹2,000 in cash from the business for personal use. So cash is involved in this transaction. So you will deduct 2,000 from the cash. So after deducting 2,000 cash, you have a net cash balance of 5,900. Supplies, no change. Land, no change. Accounts payable, no change, but there is a change in the capital account, so still you have to deduct 2,000 from the capital account. आपने इन सब को बैलेंस रखना है, डबल एंट्री होगी, एक का इफेक्ट दूसरे पर लाजमी होगा। हो सकता है आपका एसेट्स के अंदर ही हो कि एक एसेट इंक्रीज कर रहा हो, दूसरा एसेट डिक्रीज कर रहा हो, या फिर अगर एसेट्स दोनों एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आपकी जो दूसरी साइड होगी लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी, उसमें फर्क पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर आपकी इस ट्रांजैक्शन में कैश में भी आपका इफेक्ट पड़ रहा है और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन ओनर्स इक्विटी, अब इसको हमने थोड़ा सा समराइज किया है।
कि ऑनर्स इक्विटी कैसा फ़र्क पड़ेगा आपका, इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय। इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी कब होगी, ऑनर्स विड्रॉ करता है कोई अमाउंट या फिर कोई एक्सपेंसेस होते हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी ऑनर्स इक्विटी पे होगा, तो वो डिक्रीज करेगा। इंक्रीज आपका करेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसा उसमें लेके आएंगे, कुछ और इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा आपके पास रेवेन्यू से, जो हमने पिछली ट्रांजैक्शंस में देखा था कि रेवेन्यूज में चेंज आने से ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज आता है। तो ये बेसिक एक थीम है, ये अगर हमें समझ आ जाता है तो देन वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस अकाउंटिंग इक्वेशन दैट हाउ कैपिटल अकाउंट इज इंक्रीज्ड एंड हाउ कैपिटल अकाउंट इज डिक्रीज्ड। जो आपका नेट बैलेंस होगा आपके एक्सपेंसेस और आपके रेवेन्यूज में से माइनस करने में, आप क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आपके पास एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट आपका ऐड होता है कैपिटल अकाउंट में। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड समराइज्ड इंफॉर्मेशन टू द ओनर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होती है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होती हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। आपके पास बैलेंस शीट में जो कंपोनेंट्स होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के होते हैं, हमने डिटेल से देखा। इसकी जस्ट एक ओवरव्यू आ रहा है आपके पास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट आपको समरी देती है आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी आपको बताती है कि आपकी ऑनर्स इक्विटी में चेंज कितना आया है, कैसे चेंज आया है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, ये आपको बता रही होती हैं। तो अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं कि जो हमने पढ़ा है, हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन से किया था। इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, कहीं पे भी पड़ी हुई है, आप उसको अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू लेकर आते हैं, एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम में, एक प्रोसेस में आती है। उसके बाद फिर आप सारे का सारा उसको कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। फिर हमने देखा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमने 4 टाइप्स देखी थी। फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा है कि कैसे ट्रांजैक्शंस आपकी इफेक्ट होती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से, कैसे आपकी कैश में इंक्रीज आता है, कैसे आपका कैश में डिक्रीज आता है। फिर आपका कोई और एसेट इंक्रीज होता है तो उसका कैश के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या कैश नहीं देते तो फिर आपकी लायबिलिटीज में इंक्रीज आता है, या फिर आपका फिर ऑनर्स इक्विटी में क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने आज देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।